Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read environmental study looking around class 3rd chapter number 8, okay, and chapter number 8 is flying high. All right, today we have to start from page number 57, and students, this is video 3rd. All right, page number 57, video 3rd of chapter number 8. Okay, so let's start. Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? Okay, their neck movements also differ. The myna moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck, okay, backwards to a large extent. Can you move your neck like the owl? Okay, so HAVE, have. YOUEVER, ever. NOTICET, noticed. THAT, that. BIRDS, birds. FLY, fly. AND, and. WALK, walk. IN, DIFFERENT, different. WAYS, ways. Okay, have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? THEIR, there. Okay, MOVEMENTS, movements. ALSO, also. DIFFER, differ. Their neck movements also differ. THE, the. MYNAH, mana. MOVES, moves. HER, her. NECK, neck. BACK, back. AND, and. FORTH, fourth. WITH, with. JERK, jerk. Okay, the myna moves her neck back and forth with a jerk. THE, the. OWL, owl. CAN, ROTATE, rotate. ITS, its. NECK, neck. BACKWARDS, backwards. TO2, LARGE, large. EXTENT, extent. The owl can rotate its neck backwards to a large extent. Can, YOUUMOVE, move. YOUR, your. NECK, neck. LIKE, like. THE, the. OWL, owl. Okay, can you move your neck like the owl? Okay, so have you ever noticed? Okay, ever noticed, ever means कभी, noticed means ध्यान दिया. क्या तुमने कभी ध्यान दिया that कि बर्ड्स, चिड़ियाएँ या पक्षी फ्लाई, उड़ते हैं एंड वॉक इन डिफरेंट वेज. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं और अलग तरीके से वॉक करते हैं, चलते हैं. देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर. ओके, देयर मीन्स उनकी, नेक मीन्स गर्दन की, मूवमेंट्स मीन्स गर्दन जो वो हिलाते हैं, मूवमेंट्स मीन्स गति करना, हिलना. ऑल्सो डिफर, डिफर मीन्स अलग, ऑल्सो मीन्स भी. उनके गर्दन की गति या उनका गर्दन हिलाना भी अलग अलग होता है. द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क. ओके, मैना जो पक्षी है, मूव्स हर नेक, वह अपनी गर्दन को बैक, पीछे, एंड फोर्थ, आगे, विथ अ जर्क यानी झटके से अपनी अपनी गर्दन को आगे और पीछे घुमा लेती है. ओके, the owl can rotate its neck backwards to a large extent. Okay, owl means उल्लू, rotate means घुमा सकता है, its neck, अपनी गर्दन को, backwards means पीछे की ओर, to a large extent, बहुत अधिक पीछे की ओर अपनी गर्दन को वह घुमा सकता है. Okay, कैन यू मूव यूर नेक लाइक द आउल? क्या आप भी अपनी गर्दन को उल्लू की तरह पीछे घुमा सकते हो? नॉट स्टूडेंट्स, तो क्या आप घुमा सकते हो? आप अपनी गर्दन को सिर्फ लेफ्ट और राइट तक लेकर जा सकते हो, लेकिन पीछे की ओर को नहीं ले जा सकते. ओके, सो यू कैन से दैट नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल. Okay, so question is, can you move your neck like the owl? So you will say no. Okay, no, I cannot move my neck like the owl. Okay, now next,
THERE, there. Okay, there. ARERSOME, some. BIRDS, birds. Okay, there are some birds which can. Okay, WHICH, which. CAN, IMITATE, imitate. Okay, OUR, our. VOICE, voice. There are some birds which can imitate our voice. Okay, DO, do. YOU, KNOW, no. THE, the. NAME, name. OF, of. ANYNE, SUCH, such. BIRD, bird. Do you know the name of any such bird? Okay, DRAW, draw. ITS, its. PICTURE, picture. Okay, draw its picture. IN, in. YOUR, your. NOTEBOOK, notebook. Draw its picture in your notebook. COLOUR, color. IT, it. Color it. AND, and. WRITE, write. ITS, its. NAME, name. Color it and write its name. Okay. So students, here there are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. Okay, so there are some birds. कुछ ऐसे पक्षी होते हैं which can, जो कर सकते हैं. imitate means नकल या अनुसरण करना. our voice, हमारी आवाज़ की, जो हमारी आवाज़ की नकल कर सकते हैं. ओके, तो कुछ पक्षी ऐसे हैं, कुछ चिड़ियाएँ ऐसी हैं जो हमारी आवाज़ की नकल कर सकती हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, कुछ ऐसे पक्षियों के नाम क्या आप जानते हैं. ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, आप उसका चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए. कलर इट, रंग भरिए. एंड राइट इट्स नेम, और उसका नाम लिखिए. ओके, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड. ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि हमने बताया, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज़ों की नकल कर लेते हैं. हम जैसे आवाज़ करते हैं उसको, उसकी कॉपी कर लेते हैं, उसका अनुसरण कर लेते हैं. तो क्या आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं? तो अगर आप उस पक्षी को जानते हैं, आपको उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, उसमें रंग भरना है और उसका नाम लिखना है. तो दिस टाइम स्टूडेंट्स, आप उस पिक्चर को, उस बर्ड के पिक्चर को आप अपने एक ड्राइंग पेपर में बनाएंगे. व्हेन वी विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, देन आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू पेस्ट और स्टिक दिस पिक्चर ऑफ such type of bird which can imitate our voice. Okay, तो स्टूडेंट्स, आपको हमने पहले भी बताया था कि एक पक्षी पैरट ऐसा है जो कि हमारी वॉइस को ईजिली क्या कर लेता है, इमिटेट कर लेता है. ठीक है, सो यू कैन से दैट यस, पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस. ठीक है, तो यस, पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, GO, go. OUT, out. SIDE, side. Go outside. AND, and. WATCH, watch. HOW, how. BIRDS, birds. WALK, walk. AND, and. MOVE, move. THEIR, there. NECKS, next. Okay, go outside and watch how birds walk and move their necks. Okay, LOOK, look. AT, at. THEIR, there. FEATHERS, feathers. AND, and. LISTEN, listen. TO2, THE, the. SOUNDS, sounds. Okay, look at their feathers and listen to the sounds. MADE, made. BY, by. THEM, them. Made by them. Okay, so look at their feathers and listen to the sounds made by them. Okay, COPY, copy. THE, the. SOUNDS, sounds. Copy the sounds. MADE, made. BY, by. ANYNE, THRE, 3. BIRDS, birds.
Copy the sounds made by any three birds. COPY, copy. THEIR, there. NECK, knack. MOVEMENTS, movements. TOO, copy their knack movements too. Okay. ASK, ask. YOUR, your. FRIENDS, friends. Ask your friends. TO2, okay. Ask your friends too. GUESS, guess. WHICH, which. BIRDS, birds. YOUU, COPIED, copied. Ask your friends to guess which birds you copied. Okay, so go outside and watch how birds walk and move their necks. Look at their feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements too. Ask your friends to guess which birds you copied. Okay. So students, go outside. बाहर जाइए एंड वॉच और देखिए हाउ बर्ड्स वॉक कि कैसे चिड़िया चलती है. ओके, कैसे पक्षी चलते हैं. एंड और मूव देयर नेक. ठीक है, मूव मीन्स चलना. देयर नेक, उनकी गर्दन, और वे अपनी गर्दन को कैसे हिलाते हैं, कैसे मूव कराते हैं. ठीक है. लुक एट देयर फेदर्स. लुक मीन्स देखिए. देयर फेदर्स, उनके पंखों को देखिए. एंड लिसन, और सुनिए. टू द साउंड्स मेड बाय देम, उनके द्वारा जो साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसको सुनिए. ओके. कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स. और आपको क्या करना है, उस आवाज़ की कॉपी करनी है जो अन्य तीन बर्ड्स के द्वारा बनाई गई है. मीन्स कि किसी तीन चिड़ियाओं की आवाज़ को आप कॉपी करिए. कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स. किसी तीन, स्पैरो की, पैरट की, पिजन की, ओके, पिकॉक की, तो कोई भी तीन पक्षियों की आवाज़ों को कॉपी करिए, उसको इमिटेट करिए. ओके. कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू. और यह भी कॉपी करिए कि वे अपनी गर्दन को कैसे हिलाते हैं, कैसे मूव करते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस विच बर्ड्स यू कॉपीड. और बहुत ही फनी एक्टिविटी है. जब आप ऐसा करेंगे तो अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए. टू गैस, उसे कहिए, अनुमान लगाइए. विच बर्ड्स यू कॉपीड, कि कौन सी चिड़िया की आपने कॉपी की, कौन सी चिड़िया का आपने अनुसरण किया, उसका आप पता लगाइए. ओके. THE, the. FEATHERS, feathers. OFOBIRDS, birds. ARER, of. DIFFERENT, different. COLOURS, colors. SHAPES, shapes. and SIZES, sizes. Okay. The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. THEIR, their. FEATHERS, feathers. HELP, help. THEM, them. TO2, FLY, fly. and. KEEP, keep. THEM, them. WARM, warm. TOO2. Okay. The feather of birds are of different colors, shapes and sizes. THEIR, their. FEATHERS, feathers. Their feathers help them. Okay. Their feathers help them. TO2, FLY, fly. Okay. and. KEEP, keep. THEM, them. WARM, warm. TOO2. Okay. Their feathers help them to fly and keep them warm too. Okay. So the feather of birds, यानी चिड़ियाओं के पंख, are of different colors. Different means अलग अलग, colors means रंग. तो चिड़ियाओं के जो पंख होते हैं वे अलग अलग रंगों के होते हैं. Shapes means आकार के होते हैं. and sizes, अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं. Shapes means आकृति, size means आकार. ठीक है. तो चिड़ियाओं के पंख अलग अलग रंगों के, आकृति के और आकार के होते हैं. ओके. THEIR, their means उनके. FEATHERS, feathers, उनके पंख. HELP, help. THEM, them. TO2, FLY, fly. and.
Keep, keep, them, warm, warm, too. Their feathers help them to fly and keep them warm too. Okay. From, okay, from, time, time, birds, birds, lose, their, old, feathers, new, ones, grow, there, place. Okay, so from time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place. Must, have, and often, seen, feathers, birds, lying, around. You must have often seen feathers of birds lying around. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं पैराग्राफ में, द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइजेस। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के, अलग आकृति और आकार के होते हैं। देयर फेदर्स हेल्प दैम, उनके पंख उनकी मदद करते हैं, टू फ्लाई, उड़ने में, एंड कीप दैम वार्म टू। कीप मीन्स रखना, दैम मीन्स उनको, वार्म मीन्स गर्म, टू मीन्स भी, और उनको गर्म भी रखते हैं। From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. Okay, from time to time, समय समय पर चिड़ियाएँ lose their old feathers, चिड़ियाएँ अपने पुराने पंखों को निकाल देती हैं, लूज कर देती हैं, and new ones grow in their place, और उस स्थानों पर नए पंख आ जाते हैं. Okay, you must have often seen feathers of birds lying around. आपने often means अक्सर, प्राय, seen means देखे, feathers means पंख, और birds चिड़ियाओं के lying around आसपास गिरे हुए. तो आप अक्सर चिड़ियाओं के पंखों को आसपास गिरे हुए देखते हैं. Collect feathers which you find lying around. Okay, collect. Collect. Okay, feathers, feathers. WHICH, which, find, lying, around. Collect feathers which you find lying around. STUDY, study, there, SHAPE, shape, SIZE, size, COLOUR, color, and DISCUSS, discuss, ABOUT, about, it. Study their shape, size, color, and discuss about it. Okay. MAKE, make, THE, the, PICTURE, picture, of a, BIRD, bird, IN, YOUR, your, NOTE, BOOK, notebook, and, PASTE, paste, THE, the, FEATHERS, feathers, on, it. Okay, WRITE, write, ITS, its, NAME, name, write its name. Collect feathers which you find lying around. Study their shape, size, color, and discuss about it. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. Okay, collect means जमा करिए, feathers means पंखों को, which you find lying around, जो आपको अपने आसपास गिरे हुए मिलते हैं, उन पंखों को आप collect करिए, जमा करिए. Study their shape, size, color and discuss about it. Study और अध्ययन करिए, देयर शेप, उनकी आकृति, आकार, साइज, आकार का, आकृति का, कलर, रंगों का, एंड डिस्कस अबाउट इट, और इसके बारे में चर्चा करिए. मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन यूर नोटबुक, और एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए. एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, और उस पक्षी की जो फेदर्स हैं उसकी जगह पर आप ये गिरे हुए पंखों को चिपकाइए, लगाइए. ओके,
राइट इट्स नेम, और फिर उस पक्षी का नाम लिखिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको स्पैरो के पंख गिरे हुए मिलते हैं तो आप स्पैरो का पिक्चर आप कॉपी में बनाइए। कॉपी मीन्स आपको एक ड्राइंग पेपर में बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के, तब आप फिर कॉपी में उस पेज को पेस्ट करोगे, ठीक है। तो अभी आपको एक ड्राइंग पेपर में अगर आपको स्पैरो के पंख मिलते हैं तो आप स्पैरो का बर्ड का चित्र बनाइए। क्रो के पंख मिलते हैं तो आप क्रो कौवे का चित्र बनाइए और उसके पंखों को उसके फैदर की जगह पर लगा दीजिए। ओके, नाउ राइट इट्स नेम, और फिर जो पक्षी आपने बनाया है उसका नाम भी आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, OTHER अदर, THAN then, BIRDS birds, WHICH which, ARER THE OTHER other, ANIMALS animals, THAT that, CAN FLY fly. Okay, other than birds, which are the other animals that can fly? Okay, other than birds, पक्षियों के अलावा, which are, कौन से, other animals, दूसरे जीव हैं, that can fly, जो उड़ते हैं, ठीक है, जो उड़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि सभी पक्षी, सभी चिड़ियाएँ ही उड़ती हों। ओके, कुछ अदर जीव भी होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। यस, आई नो आपके पास इसका आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट्स मॉस्किटो जो पक्षी नहीं है लेकिन वो उड़ सकता है। ऐसे ही हाउस फ्लाई मक्खियाँ, हनी बी मधुमक्खी, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या करती हैं, ये उड़ सकती हैं। ओके, बट ये पक्षी नहीं है। सो राइट डाउन मॉस्किटो, MOSQUITOES, mosquitoes. Okay, mosquito can fly. And the next, house flies, HOUSEFLIES. Okay, house flies, mosquito, house fly, and honey bee. Write down HONEY, honey, BEE, honey bee, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी आपको ढूंढने हैं, ठीक है। 3 तो हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए, और भी आप याद करिए, देखिए, और कौन से इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि उड़ सकते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो उड़ते हैं, तो अब आप इनके नाम सर्च करिए और इनके नामों को लिखिए। इट्स योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58। ओके, IF YOUU code FLY fly LIKE like a BIRD bird. Okay, if you could fly like a bird, WHERE where, WOULD would, YOUU LIKE like, TO2 GO go. If you could fly like a bird, where would you like to go? Okay, WHAT what, ELSE else, WOULD would, YOUU do. What else would you do? Okay, so if you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? Okay, तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, यदि आप चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह उड़ सकते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ जाना पसंद करते, व्हाट एल्स वुड यू डू, और आप क्या करते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप पक्षी होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते और आप वहाँ पर क्या क्या करते, कौन सी चीज़ें आप वहाँ पर करते। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स बहुत हैं, आप सभी के आंसर अलग अलग होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आंसर आप लिख सकते हैं, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, सो वेयर वुड यू लाइक टू गो। सो यू कैन से I would like to go high up in the sky and see how everything look from such a height. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप पक्षी होते तो आप कहाँ जाते, अगर आप उड़ सकते, पक्षी की तरह अगर आप उड़ सकते तो डेफिनेटली आप बहुत ऊंचा आसमान में उड़ते। ओके, और आप क्या करते, आप हर चीज़ देखते एक ऊंची हाइट से कि वे चीज़ कैसी दिखाई दे रही है। आप अपना घर ढूंढते ऊंचाई से, अपना स्कूल देखते। ओके, और आप दूसरा आंसर ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू गो टू ऑल ब्यूटिफुल प्लेसेस, आई
आई वुड पिक फ्रूट्स फ्रॉम लार्जर ट्री, ठीक है, क्योंकि आप ऊंचे हो जाते, आप ऊंची हाइट में उड़ सकते, तो आप बड़े बड़े पेड़ों से अपनी पसंद के फल तोड़ सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर स्थानों पर जहां आप जाना चाहते हैं वहां उड़कर आप जाते हैं। ओके, तो आप ऐसे आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। हियर आई विल राइट सम आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन। I would like, I WOULD, I would, LIKE, okay, I would like to go high up in the sky, to go high up in the sky. Okay, I would like to go high up in the sky and see how everything look from how everything look from such a height, look from SUCH, from such a height, HEIGHT. ओके, तो हमने एक आंसर लिख दिया, आई वुड लाइक टू गो हाई अप इन द स्काई एंड सी हाउ एवरीथिंग लुक फ्रॉम सच अ हाइट। या फिर स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू गो to all beautiful places, I would pick fruits from larger tree. Okay, so now next question students, what would happen if birds could not fly but only walk on their feet? Okay, again it's a very interesting question. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि what would happen, क्या होगा if birds could not fly, यदि पक्षी या चिड़िया उड़ नहीं सकते, but only walk, केवल वे चल सकते on their feet, अपने पैरों में, लेकिन वे उड़ नहीं सकते। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर पक्षी उड़ नहीं सकते तो वे अदर एनिमल्स की तरह ग्राउंड में या लैंड में ही रहते। ओके, तो और वे अपनी इंजॉय फ्लाइट नहीं कर सकते, अपनी फ्लाइट को इंजॉय नहीं कर सकते, और अगर कोई दूसरा एनिमल्स उनको मारना चाहता, उनका शिकार करना चाहता, तो वे अपनी जान को बचा भी नहीं पाते। अभी तो हम बर्ड्स को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जब बर्ड को लगता है कि खतरा है तो वे क्या हो जाती है, बहुत ऊंची फ्लाइट ले लेती, बहुत ऊंचा उड़ लेती है, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उसको नहीं पकड़ पाते। ओके, तो अगर पक्षी के पंख नहीं होते तो वे ऊंची फ्लाइट इंजॉय नहीं कर पाती और अपने दुश्मनों से अपने को नहीं बचा पाती। ओके, सो यू कैन से दैट दे वुड नॉट बी एबल टू enjoy the flight in the sky, they will be just like all other land animal. Okay, so if birds could not fly, then they would not be able to enjoy the flight in the sky, and they will be just like all other land animals. All right, now here students, next पैराग्राफ, लेट्स मेक अ कॉक। अब यहाँ पर आपको कॉक यानी मुर्गा बनाना सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मुर्गा बनाते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अब आपको एक स्क्वायर, वर्गाकार, स्क्वायर मीन्स वर्गाकार पेपर आपको लेना है। ठीक है, वर्गाकार मीन्स जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ओके, नाउ उसके बाद FOLD, fold, IT8, ALONG, along, THE, the, DOTTED, dotted, LINES, lines, ASH, SHOWN, shown, IN, THE, the, PICTURE, picture, fold it along the dotted lines as shown in the picture. Okay, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फोल्ड मीन्स मोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको किनारे डॉट लाइन लगाकर, जैसे पिक्चर में दिया गया है, ऐसे डॉट डॉट लाइन लगाकर इसे मोड़ना है। देखिए आप देख रहे हैं पिक्चर में। सेकेंड, FOLD, fold, THE, the, PAPER, paper, INTO, into, HALF, half, ALONG, along, THE, the, DOTTED, dotted, LINE, line, fold the paper into half along the dotted line। और अब आपको उस पेपर को आधा फोल्ड करना है डॉट लाइन तक, ऊपर तक फोल्ड नहीं किया, आधा फोल्ड किया डॉट की लाइन तक। ओके,
Now third step, NOW now, FOLD fold, THE the, PAPER paper, ALONG along, THE the, DOTTED dot it, LINE line, IN in, THE the, DIRECTION direction, OF of, THE the, ARROW arrow. Now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow. Okay, अब आपको पेपर को फोल्ड करना है. नाउ फोल्ड द पेपर. अब आपको क्या करना है, उस पेपर को, उस कागज को फोल्ड करना है अलोंग द डॉटेड लाइन. जो डॉटेड लाइन दी गई है एरो की ओर को, ठीक है, तो उस एरिया को आपको उसे फोल्ड करना है. नाउ फोर्थ वन, FOLD fold, THE the, PAPER paper, TO2 MAKE make, THE the, BEAK beak, OF of, THE the, COC के cock, ASH SOWN sown, IN in, THE the, PICTURE picture. Fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture. अब आपको स्टूडेंट्स उस पेपर को फोल्ड करना है टू मेक द बीक ऑफ द कॉक. ठीक है, तो जो कॉक है उसकी चोंच बनाने के लिए उस पेपर को फोल्ड करना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं. ओके, TAKE take, a PICE piece, OF of, RED rat, PAPER paper, AND and, CUT cut, IT it, IN in, THE the, SHAPE shape, OF of a, CREST crest, OF of a, COC के cock. Take a piece of red paper and cut it in the shape of a crest of a cock. Okay, अब आपको एक लाल रंग का पेपर का टुकड़ा लेना है और फिर इसको कट करना है इन द शार्प ऑफ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक. ओके, ताकि कॉक की क्रस्ट यानी जो इसका ताज होता है मुर्गे का, जो इसका क्या कहते हैं हम, ऊपर इसका ताज बोलते हैं ना हम इसको, मुर्गे का, या कलगी भी बोला जाता है. तो इसको हम रेड पेपर में बनाएंगे और इसके कोनों को हम काटेंगे, उस आकार में इसको काटा जाएगा. पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक, और फिर इसको कॉक के हेड में चिपका दिया जाएगा. ओके, CUT cut, a SMALL small, ROUND round, CIRCLE circle, FROM from, a BLACK black, PAPER paper. Cut a small round circle from a black paper. अब आपको एक काले पेपर में एक छोटा सा गोला सर्किल बनाना है और उसे फिर कट करना है उसकी आईज बनाने के लिए. ओके, पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक, और इसको कॉक के सिर के नीचे आई के स्थान पर इसको चिपकाना है. नाउ द कॉक इज रेडी. तो अब आपका कॉक तैयार हो गया है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं. इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप एक सुंदर सा खेलने के लिए पेपर का कॉक बना सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, today class is over and this chapter is closed. Okay, tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, revise your work, do your activity work, do your drawing work. Okay, and learn all question answer. All right students, so till then take care. Bye bye. Thank you very much. Have a nice day.